Dear students, we are starting with the topic projectile motion, and this is the topic of 11th standard, obviously, as you know, dear students. And let us discuss the following definitions first, and then we can go ahead with the derivations part, dear students. First of all, in projectile motion, the first question arises: what is a projectile? तो projectile ये होता है dear students कि if you project an object with a particular angle with respect to the earth's surface, so due to acceleration, due to gravity, it won't go in a straight direction, it will take a curvy linear path, and that curvy linear path is nothing but what? Projectile motion, dear students. I have written the standard textbook definition, but for your understanding, it's just the object is going into a curvy linear path, just like when you throw when you fire a bullet from a gun, or when you throw a bomb from a cannon. These are the examples of projectile motion, as you can see, dear students. First example you see is a bomb released from an aeroplane in a level flight. When you do this, dear students, what will be the diagram? So if this is the flight, dear students, and you release the bomb, or you release a packet, the packet will follow a trajectory point. A bullet fired from a gun, an arrow released from a bow, you expect the arrow, it will go in the straight direction, but it will take a curved direction. Javelin thrown by athlete, you know, Neeraj Chopra, you have seen the javelin, dear students, it goes in a circular path, okay? But before studying projectile motion, we have to consider the following assumptions. What are the assumptions, dear students? First, there is no resistance due to air. Very funny thing, but we take this in our physics that we don't take any air resistance, dear students. Then we don't consider the effect of curvature of earth. We don't consider because we are deriving at a very basic level. But those are sending satellites or dropping bombs, they actually consider it. The effect due to rotation of earth is also negligible. These are the things we are taking. And acceleration due to gravity is constant we are taking. But you know that acceleration due to gravity is not constant. है ना? Equator पे acceleration due to gravity is different. Poles पे acceleration due to gravity is different. Latitude के हिसाब से acceleration due to gravity is different. You have studied in gravitation. But for our convenience, we are going to take g is equal to 9.8 meter per second square. And while solving problems, obviously, we are going to take g as 10 meter per second square. These are the standard definitions and assumptions, dear students, for starting projectile motion. Moving ahead, we have three different kinds of projectile, dear students. First is oblique projectile motion, then is horizontal projectile motion, and then is motion along an inclined plane. As we move ahead, dear students, we are going to discuss each and every projectile. First projectile which we are starting is oblique projectile motion, dear students. I have written all the parameters which are supposedly we are going to derive in the lectures. First, we are going to derive equation of projectile, then we are going to calculate velocity at any instant. Time of ascent, time of descent, time of flight means the total time to complete this. Maximum height, range, linear momentum, angular momentum, energy, and then relation between T and H and everything. Many things we are going to derive, dear students. So let us start this chapter, projectile motion. Let us take, dear students, this is our y-axis, this is our x-axis, and we are projecting an object with a particular angle, dear students, theta. With the horizontal, let us say its velocity is u, and it is making angle theta with respect to the horizontal. Obviously, dear students, this angle is inclined with the horizontal. If angle theta becomes 0, it will not be called as projectile motion, it will be a horizontal motion. If theta becomes 90, मतलब हमने projectile को direct ऊपर फेंका है, dear student, so that is called as motion under gravity. It is not projectile motion. Children, I can resolve this in two components, as you can see. This component will be what, dear students? It will become u cos theta. I can call it as ux. And this component will be what, beta? uy. I can call it as what? u sin theta. Obviously, I have resolved it into two components. And if I want velocity at different points, I can calculate it by drawing a tangent. See, I'm drawing tangent at different positions. Okay. Now, if you look, dear students, everywhere, I am resolving this again, dear students, for our convenience. We have component u cos theta, u sin theta. Achha, here we have only u cos theta, the horizontal component. Here we have, dear students, u cos theta. This is u sin theta. Again u cos theta, u sin theta. Dear students, if you look carefully, you can see that along the horizontal direction, dear students,
the velocity is called as ux, and that ux is what? U cos theta. If you look carefully in the diagram, throughout the entire journey u cos theta is constant. मतलब there is no change in the value of u cos theta. उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा. Dear students, if you look at the vertical component, what is the vertical component, dear students? In that case, it is u sin theta. अब देखिए u sin theta स्टार्टिंग में ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे u sin थीटा गायब हो गया. फिर डियर स्टूडेंट जब ऑब्जेक्ट नीचे आया तो u sin थीटा का डायरेक्शन रिवर्स हो गया. तो व्हाट आई मीन टू से इज वर्टिकल कंपोनेंट पहले इंक्रीज ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर इवेंचुअली जीरो हो गया, फिर वो क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड हो गया. तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो u sin थीटा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो समय के हिसाब से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. Now how do we understand this very well? Dear students, in order to understand this projectile, you have to look at it three aspects. What are the three aspects? बहुत ध्यान से देखिए बेटा. प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले आप फ्रंट व्यू में देखेंगे. जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो आपको ऐसा एक कर्व दिखेगा, करेक्ट है? तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज फ्रंट व्यू. डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड एस्पेक्ट जो है इसका वो है साइड व्यू. अगर आप इसको साइड से एज एन ऑब्जर्वर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया और कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया और कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ गया. साइड व्यू से देखने से आपको ऐसा लगता है कि ये जो मोशन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो हम ऑलरेडी 1D में पढ़ चुके हैं. सोचिए, जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है. टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0. फिर वो नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ने लगती है. वी ऑलवेज से दैट आना जाना एक समान, जिस वेलोसिटी से वो जाता है उसी वेलोसिटी से वो नीचे आता है. बट टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. हमारे साथ भी तो यही हुआ कि इसका साइन कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या हो चुका है? 0. ओके, मतलब साइन कॉम्पोनेंट जो है डियर स्टूडेंट, इट इज बिहेविंग लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी. और थर्ड एस्पेक्ट में जो आपको बोल रहा हूं देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, वो है इसका टॉप व्यू. आप प्रोजेक्टाइल को टॉप व्यू से देखिए, ड्रोन कैमरे से देखिए. जब आप ड्रोन कैमरे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा गया, स्ट्रेट लाइन मोशन. आप देखिए, आप प्रोजेक्टाइल मान लीजिए एक बहुत ऐसा बॉम्ब ऐसा गया, लेकिन आप बहुत ऊपर है, बहुत हाई लेवल पे 2-3 किलोमीटर ऊपर से आप देख रहे हैं, तो आपको उसका कर्व पाथ नहीं दिखेगा. आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा गया. अंडरस्टैंडिंग? तो टॉप व्यू से कैसा हो गया बेटा? वो स्ट्रेट लाइन मोशन. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने 3 एस्पेक्ट से देखा उसे. फ्रंट व्यू में आपको लगा प्रोजेक्टाइल कर रहा है, साइड व्यू में आपको लगा सिर्फ ऊपर गया और सिर्फ नीचे आया, और टॉप व्यू में आपको लगा कौन सा मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को 3 नजरिए से देख रहे हैं. फर्स्ट इज फ्रंट व्यू, सेकेंड इज साइड व्यू, एंड थर्ड इज टॉप व्यू. Now dear students, once we know what we are doing is dear students, we are going to move ahead और देखेंगे dear students कि क्या होता है. Now let us proceed. ये जो velocity है dear students, u sin theta change हो रही है. तो what we are going to do is we are going to study different aspect. पहले हम horizontal motion को देखेंगे. Let us start with horizontal motion first. Let us write everything in horizontal motion first. बेटा horizontal motion में जो velocity है उसको हम बोलते हैं ux, और उसकी वैल्यू क्या है? u cos थीटा. बेटा एक्सेलरेशन कितना है? सर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी किधर एक्ट होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में. तो एक्सेलरेशन कितना है? 0. ax इज 0. डियर स्टूडेंट्स, लेट मी राइट द इक्वेशन. आपके लिए इक्वेशन लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at. सिंस मैं x एक्सिस का मोशन ले रहा हूँ तो मैंने सब जगह x लिख दिया. वेलोसिटी इन x विल बी इक्वल टू ux. ux कितना है? u cos थीटा. ix कितना है बेटा? 0. तो वेलोसिटी आपकी जो आ रही है बेटा वो क्या आ रही है? u cos थीटा. कहने का मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है. आप t सेकेंड्स पे निकालो तो भी u cos थीटा, 5 सेकेंड्स पे निकालो तो भी u cos थीटा, 0 पे निकालो तो भी u cos थीटा. मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. लेट अस टॉक अबाउट अनदर थिंग, that is
सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। बच्चों आपको सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्स एक्स। बेटा मैं एक्स को एस एक्स को फिलहाल के लिए एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जैसे कि मान लो टाइम टी पे पार्टिकल ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा। लेट अस से ये डिस्टेंस एक्स उसने कवर किया टाइम टी पे, और ये उसका हाइट वाई है टाइम टी पे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ जो इसका पूरा डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेंज, डिनोटेड बाय लेटर आर। और यहाँ से यहाँ का जो उसका पूरा डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। आगे जाके हम इन सबको डिराइव करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कोई टाइम टी पे उसका एक्स निकाल रहा हूँ। बेटा यू एक्स की वैल्यू तो यू कॉस थीटा मैंने पुट कर दी, है ना। टाइम मैंने लिखा टी, और ए एक्स के जगह पे मैंने डाल दिया 0। क्यों 0? क्योंकि सर वेलोसिटी एक्स में, तो एक्सलेशन तो एक्स में है ही नहीं, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यू कॉस थीटा इंटू टी। चिल्ड्रन क्या मैं टी को निकाल के लिख सकता हूँ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। आर वी क्लियर विथ हॉरिजॉन्टल मोशन डियर स्टूडेंट्स? हमने हॉरिजॉन्टल मोशन का अभी तक एनालिसिस कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कौन से मोशन का, वर्टिकल मोशन का। लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। वर्टिकल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेट अस प्रोसीड। अलग अलग तरीके से इसलिए एनालाइज कर रहे हैं ताकि बाद में क्लब करें तो चीजें आसान हो जाए। बेटा वर्टिकल मोशन में जो उसकी वेलोसिटी आपने दी थी टाइम टी इज इक्वल टू 0, वो थी यू वाई, और यू वाई को हम लिखते हैं यू साइन थीटा। बेटा उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे ए वाई, जो कि वो माइनस जी। सर आपने माइनस जी क्यों लिखे? बेटा जी जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम उसको माइनस लिखते हैं। स्टार्ट करें बेटा, फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। बोलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है काइनेमैटिक्स का? व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेरी नाइस। y y y, क्योंकि हम y का मोशन पढ़ रहे हैं। बेटा बोलिए y में उसकी वेलोसिटी मुझे मालूम नहीं, इनिशियल वेलोसिटी y में सर जो है वो है u साइन थीटा। टाइम को हमने लिख दिया t, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे माइनस जी, और इसको लिखा t। तो यहाँ पे टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम तो आएगा ही नहीं, u साइन थीटा माइनस जी टी। ये वेलोसिटी कोई भी टाइम t पे आप निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अलोंग एनी पर्टिकुलर टाइम। सेकेंड हम ट्राई करते हैं डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने को, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, बोलिए बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y का मोशन पढ़ रहे हैं तो एस वाई यू वाई ए वाई। चलिए y में जो मोशन है उसको हम y लिख रहे हैं। वेलोसिटी इन y को हम लिखेंगे u साइन थीटा, टाइम को t रखेंगे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन y बेटा अभी दिखा था, क्या लिखेंगे माइनस जी, और टाइम को लिख देंगे टी स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमको आ गया। अच्छा बेटा हमको एक सवाल आता है कि अगर हमसे कोई पूछे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो देखिए हम क्या करेंगे बेटा। आप जानते हैं जो मोशन हम पढ़ रहे हैं बेटा वो 2D है, तो उस मोशन में दो वेलोसिटी आ सकती है। उसमें वेलोसिटी इन x भी आएगी और साथ साथ उसमें वेलोसिटी इन y भी आएगी। कितने बच्चों को ये नहीं समझा? सबको समझा होगा लगभग कि आप वेलोसिटी को लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अच्छा x की जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स जो हमने निकाली थी, देखिए इक्वेशन 1 से, वो कितनी है u cos थीटा आई कैप, और y की वेलोसिटी जो हमने अभी निकाली बेटा, देखिए वो कितनी है बेटा, वो है u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। चलिए ये जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी पार्टिकल की कोई भी इंस्टेंट पे, अगर आपको t सेकेंड्स बोले तो t सेकेंड्स पे निकालिए, ओके, जो सेकेंड पे आपको बोले वेलोसिटी आप निकाल लीजिए। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लिखेंगे रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। चिल्ड्रन मैं उसको सॉल्व करूं या नहीं करूं, आप बताइए। चलो सॉल्व कर देते हैं। अगर हम लिखें इसको डियर स्टूडेंट्स तो वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आप इसके साथ मैथ्स का मर्डर कर सकते हैं और जो आपको आंसर आए वो निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बट आप ये याद रखेंगे तो बेस्ट है। कभी कभी आपसे डियर स्टूडेंट्स वो एंगल भी पूछते हैं, एंगल एट एनी इंस्टेंट, तो कैसे करेंगे बेटा? तो हमने फॉर्मूला बचपन में सीखा है बेटा,
tan अल्फा इज इक्वल टू वेलोसिटी इन y अपॉन वेलोसिटी इन x। बच्चों वेलोसिटी इन y हमने लिखा है, क्या है वेलोसिटी, देखिए इट इज u साइन थीटा माइनस जी टी। वेलोसिटी इन x बच्चा हमने लिखा है u कॉस थीटा। तो क्या हमको अल्फा आ जाएगा जी, tan को इधर लेके जाइए अल्फा आ जाएगा। इतना कुछ हम कर नहीं रहे, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें। चलो फिलहाल लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ, ये भी लिख देते हैं आपके लिए, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। ये रहा बेटा आपका फॉर्मूला वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट का एंगल, वो एंगल निकालना। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको दोनों चीज़ देना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो हमने अब तक डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में यही किया है, हमने दोनों मोशन को एनालिसिस किया, उनका डिस्प्लेसमेंट निकाला और उनका वेलोसिटी निकाला। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। So let us start with important concept, equation of projectile। बहुत important है dear students, let us proceed। dear students हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस इक्वेशन को उठा लेते हैं। dear students इस इक्वेशन का नाम 2 था, हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 3 और इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 4। चलिए बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन 4 को हम उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 को उठाएंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन था, प्लीज चेक कर लिए, यही इक्वेशन था बेटा। हमने इक्वेशन नंबर 2 में टाइम की वैल्यू निकाल के रखी है, क्या है बेटा वो वैल्यू, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू उठाएंगे, पुट x इक्वल टू put t is equal to x upon u cos theta in above equation, ऊपर वाली इक्वेशन में ये डाल देंगे। चलिए लेट्स ट्राई, y is equal to u sin theta, let's put the value of time, x upon u cos theta minus half g, टाइम की जगह पे हम लिख रहे हैं x upon u cos theta the whole square। चलिए कुछ कैंसिलेशन करते हैं, u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस चिल्ड्रन हो जाएगा tan, तो हम लिखेंगे x tan थीटा माइनस g x का स्क्वायर, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है हमारा y। चिल्ड्रन आप इस y की इक्वेशन को देखिए तो इसमें y इज समथिंग माइनस समथिंग स्क्वायर। ये अल्फा और बीटा क्या है बेटा, ये अल्फा और बीटा क्या है, हमने इस चीज को बीटा मान लिया है और इस चीज को क्या मान लिया है, अल्फा। क्यों माना है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस इक्वेशन को देखिए बेटा, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप बचपन में पढ़ के आते हैं, है ना, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कोई भी इक्वेशन में स्क्वायर फंक्शन आता है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है पैराबोलिक। ये हमने मोशन इन 1D में पढ़ा है, ग्राफिकल एमसीक्यूज में, ग्राफ में। तो बेटा इससे पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो क्या है एक्चुअली, वो कैसा होना चाहिए, पैराबोला। अब देखिए बेटा ये पैराबोला ही है, लेकिन आप जो पैराबोला पढ़ते हैं वो अलग है और ये पैराबोला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इसमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट आया जो मैथ्स वाले समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओरिजिन शिफ्ट हुआ इसलिए पैराबोला ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो हमने अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली डियर स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को मैं फिर से आपके लिए अच्छे से लिख दूं, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू कॉस थीटा द होल स्क्वायर। चिल्ड्रन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप क्या कर लीजिए बेटा, LBH लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी इसी में डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स टैन थीटा मान लीजिए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज हैपनिंग, मैं प्रोसीड करता हूँ इसको, आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलिए, अब व्हाट इज हैपनिंग इज डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस y को ऐसे ही रखा, y इज इक्वल टू कंटिन्यूड है बेटा, एक्स टैन थीटा बाहर रखा
1 माइनस एज इट इज रखा। अब ये पूरे टर्म को अगर मैं सॉल्व करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, दैट इज x अपॉन r। सर आपने किया नहीं सॉल्व और आपने डायरेक्ट लिख दिया। बेटा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको इस r को हम बोलते हैं रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। तो फिलहाल जब आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जब आपको रेंज का फॉर्मूला आप सीख जाएंगे तो आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा आपको मैंने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के दो फॉर्मूले दिए बेटा। एक फॉर्मूला वो है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डियर स्टूडेंट्स ये है दूसरा फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस 1 बाय एक्स बाय आर, वेयर आर इज योर रेंज। ये हमारा टॉपिक था बेटा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। We'll move ahead dear students and we'll find other important parameters. Let us start. तो डियर स्टूडेंट्स हम कुछ पैरामीटर्स निकालते हैं, जैसे कि हम अभी निकालने की कोशिश करते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कितना टाइम लगा उसे ऊपर जाने के लिए, बराबर है। फिर उसको नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इधर देखिए। मैंने आपको बोला था वी हैव 3 वेज ऑफ लुकिंग इट। द सेकेंड वे वॉज साइड व्यू। आप इस ऑब्जेक्ट को साइड व्यू से देखेंगे तो हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल को हमने कुछ वेलोसिटी दी, वो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, बोलिए 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी बेटा, u साइन थीटा। स्टूडेंट्स हमने u साइन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हम साइड व्यू से देख रहे हैं। साइड व्यू का मोशन कैसा होता है, ऊपर जाके देखिए साइड व्यू का मोशन कैसा होता है बेटा, इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया और कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया। ऊपर गया बेटा मतलब कौन सा मोशन, वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन में आप कौन सा वेलोसिटी लेते हैं, u साइन थीटा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। काइनेमैटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। जिस वेलोसिटी से हमने ऊपर भेजा था बेटा वो था u साइन थीटा। जिस एक्सेलरेशन की बात करेंगे वो माइनस जी, मैं आपको बता चुका हूँ, साइन कन्वेंशन यूज करें। और जो टाइम हमने लिखा उस टाइम को हम बोले टी ए का मतलब क्या हो गया बेटा, टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स v 0 हो गया क्योंकि फाइनली टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो गई है। मैं इसे रीअरेंज करता हूँ, मुझे आंसर आ जाएगा u साइन थीटा बाय जी। चिल्ड्रन क्या मैं u साइन थीटा को प्यार से uy अपॉन जी लिख सकता हूँ, हाँ सर नो इश्यूज। तो ये फॉर्मूला भी चलेगा। तो ये आपने किसका फॉर्मूला निकाल दिया बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट। चिल्ड्रन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ, जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगता है। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोथ हैज टू बी सेम। बट इफ यू वांट मी टू प्रूव इट, आई प्रूव इट फॉर यू। देखो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि वो ऊपर पहुंच चुका है and once it have reached the topmost position it will start descending downwards, and when it will descend downward dear students it will have some velocity। जब उसको छोड़ा गया उस लम्हे पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। लेट्स स्टार्ट। v इज इक्वल टू u प्लस at। मैं टाइम ऑफ डिसेंट निकालो जिसे मैं td कहूँगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब उसने मोशन स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, u साइन थीटा। बट चिल्ड्रन मैंने उसको लिखा माइनस। सर आपने माइनस क्यों लिखा, साइन कन्वेंशन। जब ऊपर रहता है तो प्लस, नीचे रहता है तो माइनस। एक्सेलरेशन एज यूजुअल माइनस जी, और टाइम को हमने लिखा टी। तो टी का फॉर्मूला भी क्या आ गया बेटा, u साइन थीटा बाय जी, जिसे मैं uy अपॉन जी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। चिल्ड्रन टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपका सेम है। मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आना जाना एक समान, दोनों सेम ही रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स डियर स्टूडेंट्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी। So dear students, if this is the projectile motion, from here to here it will be called as time of ascent, है ना। From here to here it will be called as time of descent, and the total time will be time of ascent plus time of descent, बराबर ascent और descent का time add करना है, which is what, uy by g plus uy by g. What will it become बेटा, 2uy by g,
or you can also write it as 2u sin theta by g. Children, this is your formula for what? Time of flight. Sweet and simple. हमने क्या क्या डिराइव कर लिया चिल्ड्रन? हमने टाइम ऑफ एसेंट डिराइव कर लिया, टाइम ऑफ डिसेंट डिराइव कर लिया, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया. Are we clear, dear students? All these three formulas, dear students, I would insist that you learn by heart. All of the formulas are very, very important. So we have derived following things right now. क्या क्या derive कर लिया है? We have derived equation of projectile, velocity at any instant, time of ascent, time of descent, time of flight. We are going ahead with max height and range. Let us proceed. Max height और range निकालते हैं, dear students. Let us go and find the maximum. Let us find the range first, then we can find the maximum height. Okay, so we are going to ahead with a range. Range का मतलब है कितना उसने horizontal distance cover किया. Horizontal distance covered by the projectile. ठीक है, लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स. अब इसके लिए आपको ना एक नया एस्पेक्ट, हमने बोला था हम प्रोजेक्टाइल मोशन को तीन नज़रिए से पढ़ेंगे. पहले फ्रंट व्यू में वो प्रॉपर प्रोजेक्टाइल रहेगा, साइड व्यू में ऐसा लगेगा ऊपर गया नीचे आ गया, और डियर स्टूडेंट्स टॉप व्यू में ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कोई एकदम सीधा गया. तो हम रेंज को देख रहे हैं इसको टॉप व्यू में. तो टॉप व्यू में हमको लगा कि कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा गया. कौन सा मोशन है बेटा वो टॉप व्यू में? टॉप व्यू में इट इज पर्टिकुलरली विच मोशन? इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. अच्छा, नाउ लेट्स यूज द बेसिक फॉर्मूला. चिल्ड्रन, हमने एक इक्वेशन निकाली थी, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी. ये इक्वेशन अगर आप भूल गए तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ. देखिए, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी. डियर स्टूडेंट्स, हमने जब प्रोजेक्टाइल बनाया तो मैंने आपसे कहा था x मतलब ये डिस्टेंस, कोई रैंडम डिस्टेंस, कोई रैंडम टाइम t पे, बट मुझे रेंज निकालना है. तो ये रेंज उसने कितने समय में कवर किया? रेंज को कवर करने के लिए पूरा जर्नी लगा ना, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट. तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा r से, क्योंकि पूरा डिस्टेंस, और छोटे t को मैं लिख दूंगा बड़े t से, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट. अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 मिनट में इसको हम फिनिश कर रहे हैं. रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम. चिल्ड्रन, टाइम का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर ताज़ा ताज़ा सीखा है, 2u साइन थीटा बाई जी. क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. चिल्ड्रन, जो लोग मैथ्स पढ़े हैं बेसिक वाला, उनको मालूम है 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा. तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. सिंस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट व्हाट? साइन 2 थीटा. ब्यूटीफुल. ये रेंज का फॉर्मूला आ गया. डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न बाय हार्ट करना जरूरी है. इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिखना चाहता हूँ, जरा नजरिया देखिए. रेंज, चिल्ड्रन यही चीज को देखिए, यू कॉस थीटा मतलब कौन सी वेलोसिटी? एक्स में. यू साइन थीटा मतलब कौन सी वेलोसिटी? वाई में. जी एज इट इज, टू एज इट इज. तो ये भी आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं याद कर रहे, खाली यू एक्स इंटू यू वाई. तो रेंज इज 2ux uy अपॉन g. These are the two formula for range of a projectile. Are we clear with these? बहुत डिटेल आएगा रेंज में, लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक पे कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. लेट अस फाइंड द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स. चिल्ड्रन, इसके लिए भी मैं एकदम सिंपल काइनेमैटिक्स यूज करूंगा. देखिए, ऑब्जेक्ट है, साइड व्यू से देखिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. आपने कितनी वेलोसिटी दी है स्टूडेंट्स को? u.
I'm going with this equation. V square is equal to U square plus 2AS. Perfect. Children, सिंस मैं हाइट की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से मोशन की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन, वर्टिकल मोशन. वेलोसिटी इन वाई में जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स फाइनली कितनी हो जा रही है? 0. तो मैंने 0 का स्क्वायर लिख दिया. वाई जो वेलोसिटी होती है डियर स्टूडेंट उसको मैं फिलहाल के लिए यू वाई ही रहने देता हूँ, प्लस 2. बेटा एक्सेलरेशन तो हमेशा माइनस जी लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट डियर स्टूडेंट्स हमने कितना लिखा? h. तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? 2gh इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर. तो h का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? यू वाई स्क्वायर बाय 2g. इस h को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम हाइट, h मैक्स. ठीक है ना? कैसे इसको लिखूं? चिल्ड्रन यू वाई क्या होता है? वेलोसिटी इन वाई क्या होती है? यू साइन थीटा. तो यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने बेटा, दोनों फॉर्मूले आपके काम के. क्लियर है? हाइट हमने निकाल ली डियर स्टूडेंट्स. कैन वी प्रोसीड? तो अब तक हमने क्या क्या निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स? वी हैव कैलकुलेटेड मैक्स हाइट, we have calculated range. Now we are going to calculate linear momentum, angular momentum. Let's proceed. Linear momentum. Children, you know what is linear momentum. It is P. Okay, so we're going to calculate momentum, which is P, and that is nothing but what? Mass into velocity. So if I'm calculating momentum in x, I'm going to write what, dear students? Mass into velocity in x. What is velocity in x? It is always u cos theta. So that is momentum in x. If I talk about momentum in y, so I'm going to write what? M into uy. What is momentum in y? It is u sin theta. Simple. As a students, if someone tells you find a change in momentum, then what? Look here. जब वो ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? u sin theta. जब वो नीचे आया तो उसकी वेलोसिटी क्या है? u sin theta. Let's do it. अच्छा सर, ये आते वक्त सेम ही वेलोसिटी है, आना जाना एक समान. कैन आई से चेंज इन मोमेंटम विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम कॉमन, माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा. व्हाट इज द फाइनल आंसर? सर ये दोनों माइनस, नीचे जाने वाले को तो माइनस लिया ही लिया, प्लस ऊपर जाने वाले को प्लस था ना, तो प्लस माइनस ऑफ प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 mu साइन थीटा. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम along y. Can anyone tell me what is the change in momentum along x? Answer is 0. क्यों सर? क्योंकि x में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, हमने खुद ही लिखा है ना? तो ये हमारा हो गया लीनियर मोमेंटम. लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम. एल बार से डिनोट करते हैं. लेट्स ड्रॉ द सिंपल डायग्राम ऑफ प्रोजेक्टाइल. एट द टॉप ऑफ पॉइंट आई एम कैलकुलेटिंग. ये है हमारा u cos थीटा, ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम r बोलेंगे. दैट r इज नथिंग बट हाइट. ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज mvr. आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक सर ये तो कभी सीखा ही नहीं. यस डियर स्टूडेंट्स, यू गोइंग टू स्टडी इन दिस लेटर पार्ट. शायद यूनिट्स एंड डायमेंशंस में टीचर ने थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन जब आप लेटर पार्ट में आगे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स तब आपको ये आएगा एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ when you are going to study rotational dynamics. Okay, mass velocity at topmost position is what beta? U cos theta. R is nothing but your height. Let's put the value. Height का value हमने निकाला था ना बेटा. What is the value? U square sin square theta by 2g. Whatever answer you are getting, m u cube sin square theta cos theta by 2g. This is the formula for what, dear students? Angular momentum. Now let us find energy.
Dear students, when the projectile is projected, its initial velocity is what? U. So what will be the energy? It will become half mu square. Which energy? Kinetic energy. Let us suppose I am calculating the kinetic energy at topmost position. Correct? So what will be the kinetic energy? It will become what? Half m u cos theta the whole square, which will eventually turn out to be what? Half m u square cos square theta. But half m u square क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो ये नया काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट को हम लोग बोल देंगे के डैश. के डैश बोल सकते हैं, के टॉप बोल सकते हैं. तो इट विल बिकम व्हाट? के ई ओरिजिनल इनटू cos square theta, which means your kinetic energy initial is directly proportional to what? Cos square theta. सिंपल. अच्छा, एक बात बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका तो ये काइनेटिक एनर्जी कॉस पे डिपेंड कर रहा है, और कॉस वाला जो कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स आपका काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इट विल चेंज. सिंपल. तो चेंज हो रहा है, तो ऊपर जाते वक्त आपका साइन कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी कम डिक्रीज हो रहा है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? mgh. mgh. What is the formula for height? Correct? क्या फॉर्मूला बना? हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? इनिशियल एनर्जी. करेक्ट है? मल्टीप्लाइड बाय दैट. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा. तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा. Children, if you add the two energies, which two energies? Which two energies I am telling to add you? I am telling you to add kinetic and potential. So if I add them, which energy I am going to get? Obviously, the correct answer is total energy. What will be total energy? So total energy will be sum of kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy? Half mu square cos square theta. Half mu square sin square theta. तो cos square theta plus sin square theta add हो गया. कॉमन निकल गया ना half mu square. तो it will become what? 1. So it is half mu square. So as projectile goes up, kinetic energy decreases, potential energy increases, but total energy remains constant. Are we clear with this energy का फंडा? तो till now we have calculated this much, dear students. Let us move ahead. Let's find relation between T and H. Now what we are studying is, dear students, are important results. If you don't want to learn the derivation, you can just skip and directly remember the formula. Not an issue. बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला था u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी. हाइट का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी. What we can do is, dear students, I am doing one important thing. बच्चे पागल हो गए. अरे भाई मैंने खाली उसको स्क्वायर किया है. टाइम पीरियड का स्क्वायर कीजिए. 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर. कैंसिलेशंस कर लेते हैं. बेस्ट. जी जी साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर. क्या बचा हमारे पास? h अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 किया, यहाँ पे 2g भी था. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में डियर स्टूडेंट्स हमने टाइम पीरियड का पहले लिखा 2u साइन थीटा बाई जी, फिर हाइट लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. दोनों को डिवाइस किया डियर स्टूडेंट्स. मैंने टाइम पीरियड का स्क्वायर लेके वैल्यू डाला. ओके अब क्या होगा? ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 8. ये जो g डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास और कुछ बचा नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स नाउ व्हाट वी हैव 8h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो टाइम पीरियड विल बी व्हाट? अंडर रूट ऑफ 8h बाई जी. ये रहा आपका डायरेक्ट रिजल्ट जो आप याद कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए. सिंपल है. तो पहला रिजल्ट टाइम पीरियड और h के बीच का रिलेशन. लेट अस मूव अहेड.
We'll move ahead and we will find other relations also. Other relations as in range and all ka relation with respect to this. Let me just decrease this, okay, so that we get a full page. As of now we have studied this much. The first result what we want is we got this. अब आगे बढ़ लेते हैं. Let us say we want the particular angle at which height and range will have same values, or we can say that, let us say a range is n times your height. Okay, what is the formula for range? U square sine 2 theta by g. What is the formula for height? U square. Topic which is studying relation between height and range. Okay, U square sine square theta by 2g. Let's go with the cancellations. G. Okay, U square. Let me split the sine theta, 2 theta. So it will become what? 2 sine theta cos theta. Here we have n sine theta sin theta. 1 sine and sine cancel. Children, this will become what? यहाँ का 2 pending है, तो 2 into 2 will become what? 4. This cos will go there, तो sin upon cos हो जाएगा. अच्छा, what is sin upon cos, children? Tan. So we have 4 upon n tan theta. Final result, theta will be what? Tan inverse of 4 by n. Okay, if your range is n times that of height. Yeah, one result we have derived. Now we are going ahead with complementary angles. Important things we are going to study now. Very important things. First we are going to start with complementary angles. What are complementary angles here, students? Angles which add up and give us 90 degree are called as what? Complementary angles. So अगर एक 20 है तो उसका complementary angle क्या होगा? 70. अगर एक 10 है तो उसका complementary angle क्या होगा? 80. अगर एक 30 है तो उसका complementary angle क्या होगा? 60. वैसे ही आपने वर्ड सुना होगा supplementary angle. अगर दो को ऐड करके 180 होता है तो उसको supplementary बोलते हैं. Now we are going to calculate range for complementary angles. Range for complementary angles. Let us say I am taking two angles. One angle I am taking as theta and the other angle of theta 1 and the other angle I am taking it as theta 2. Let us say. सर आपको कैसे पता रेंज सेम होगा? अभी प्रूफ करते हैं ना. ठीक है. Y x. Let's do for theta 1. But you know that, na? Theta 1 plus theta 2 should be 90 because they are complementary. Let's move ahead. What is the formula for range? U square sine 2 theta. If I am doing range 1, then I will write sine 2 theta 1 by g. If I am doing for second angle, I will write U square sine 2 theta 2 divided by g. Pay attention now. U square sine 2. Can I write theta 2 as pi by 2 minus theta 1? Huh? Children, इधर बच्चों लोग, theta 2 is 90 minus theta 1, pi by 2 minus theta 1. It multiplies here, it will become what? Sin pi minus 2 theta 1. अरे ब्रैकेट ओपन किया बच्चों. तो u square, what is sin 180 minus theta? Second quadrant, sin theta. तो u square sin 2 theta 1 by g. That you are calculating range 2. You are calculating range 2. आपको range 1 कितना था? ये था u square sin 2 theta 1 by g. आपको range 2 कितना है? u square sin 2 theta by g. If you check out, which means what? Your range 1 is equal to range 2 ना children. इसका मतलब we have an important result. What is the important result? For complementary angles, range is same. Which means what?
which means like this. If I draw a projectile and I project it at 30 degree, if I draw a projectile and I project it at 60 degree, oops, both of them will have same range, because 30 and 60 add up and become what? Complementary angles. Okay? So this is the relation. Now I'm going to find ratio of time periods also for complementary angle. अच्छा चिल्ड्रन, बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए टाइम पीरियड सेम रहेगा क्या? नो, एक ज़्यादा टाइम के लिए, एक कम टाइम के लिए ना. रेंज सेम है बट उनका अलग अलग है ना. हाइट देखो अलग अलग, डायग्राम देखो, हाइट अलग है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग होगा उनका. टाइम पीरियड बोलने की जगह पे ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट. सो लेट अस गो. T1 upon T2. What is the formula? 2u sin theta 1 upon g. 2u sin theta 2 upon g. 2u g cancel. What is the result? Sin theta 1 upon sin theta 2. But you know theta 2 can be written as what? Sin 90 minus theta 1. अभी तो सीखा ना complementary angle. What is sin 90 minus theta? Cos theta. Children, can you tell me what is sin theta upon cos theta? Tan theta. तो T1 upon T2 is what, children? Tan theta. ये है आपका एक important result. Beautiful. Let's find another thing. Ratio of max height. H1 upon H2 will be U1 square sin square theta 1 divided by 2g. U1 square, velocity is same here, only U square sin square theta 2 upon 2g. Again U square 2g cancel. Sin square theta 1 upon sin square theta 2. But you know I'll put theta 2 के जगह पे what, children? Sin 90 minus theta 1 the whole square. तो sin square theta 1 upon cos square theta 1 will become tan square theta 1. One more interesting thing I want to ask you, dear students. If I add them together, what will happen? H1 plus H2 will become U square upon 2g. Sin square theta 1 plus sin square theta 2, but sin square theta 2 can be written as cos square theta 1. So what will the answer? U square by 2g. Acha, what is this U square by 2g? Let's do it. This U square by 2g is what? This is the अभी आता है, रुको. अभी मैं ना एक important चीज निकालता हूँ. Range max. We have observed, dear students, if I want maximum range, the sin 2 theta term has to be how much? 1. And if you want it 1, so theta has to be how much, beta? 45. So sin 45 into 2, 90, so range maximum is what, dear students? U square by g. Similarly, I want to find height at 45 degree. I'm going to write formula here. U square sin square 45 divided by 2g. What is sin 45? Tell me. 1 by root 2. 1 by root 2 का square. 1 by 2. 2 और 2 cancel. नहीं. Multiply हो जाएगा. U square by 4g. Can I say? ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखो. फर्क किसका है? 4 का. तो कैन आई से range max is what? 4 times h max. डिवाइड करके देख लो, है ना. रेंज मैक्स इज व्हाट? 4 times h max. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. सो जो मैं आपको ये सब बॉक्स में डाल रहा हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपका क्या है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ठीक है. नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज
रेंज आ गया, मैक्स आ गया, व्हाट एल्स वी कैन फाइंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेंज, टाइम पीरियड का रेशियो, हाइट. ओके हाँ, वन रिजल्ट विच आई वांट. हाँ, ये आपको एंट्रेंस में बहुत पूछते हैं. विल गो अहेड एंड डिराइव दैट. Relation between range and time period. Now pay attention a bit. Let's multiply t1 into t2. 2u sin theta 1 upon g, 2u sin theta 2 upon g. 2 into 2 will become what? 4. U square sin theta 1. You can recall beta. Theta 2 के जगह पे I'm going to write what? 90 minus theta, it will eventually become what? Cos theta 1 upon g square. Let's write it like this. सर कुछ नहीं समझा. 4 into 4 is 2. तो I've written 2 into 2. G square I've written G into G. What is so tension वाला इसमें? बराबर. Can you tell me what is this 2 sin theta cos theta as per mathematic? 2 sin theta cos theta what? Beta half angle formula. Sin 2 theta 1 ना. G as it is, U square as it is, 2 by G. अच्छा, this formula is what? This is the formula for range. So 2R by G is nothing but what? T1 into T2. Simple. So this you have to remember. One more thing, dear students, if you can recall, मैंने बोला था time is under root 8h by G. So now T1 की जगह पे कैन आई राइट अंडर रूट 8h1 by G इंटू अंडर रूट 8h2 by G एंड दैट विल बिकम व्हाट 2R by G. व्हाट इज 8 रूट 8 इंटू, मतलब रूट कॉमन, 8 इंटू 8 विल बिकम व्हाट 64. 64 का डियर स्टूडेंट्स रूट विल बिकम व्हाट 8. तो आई विल गेट 8 रूट h1 h2. G तो बाहर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रूट है ना, 2R by G. G and G will cancel. So can I write range is nothing but 4 root of h1 into h2? These are important formulas dear students which we have to remember it. ये सब important result है, आपको डायरेक्ट रखना ही है, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके दिया है ताकि आपको ये याद रहे. मतलब अगर जिसको कहीं में याद रखना है उसके लिए ये सब कुछ important result है dear students. अभी थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा. अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ. देखो, मैं मोशन एंड ग्रेविटी से डिस्कशन लेके आ रहा हूँ आगे. चलिए ध्यान से देखिएगा. लेट अस से आई एम सेंडिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ वेलोसिटी 50. आफ्टर 1 second what will be its velocity? 40. After 1 second its velocity will be 30. After 1 second velocity will be 20. After 1 second 10. At this point its velocity will become what? 0. सर ये आपको कौन बोला 10 से कम हो रहा है? इधर देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. इनिशियल वेलोसिटी 50, u के जगह पे माइनस जी, टाइम के जगह पे 10. व्हाट इज g का वैल्यू 10. 40 हो गया ना. 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 40, तो अगले 1 सेकंड बाद कितना होगा 30. और एक और चीज, g का वैल्यू बोलो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना. इसको पढ़ो. इसका मतलब क्या है? हर 1 सेकंड से आपकी वेलोसिटी कितने से चेंज होगी? 10 मीटर पर सेकंड से. समझे? टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया 50, 40, 30, 20, 10. जब रिटर्न आएगा तो स्टार्ट कैसे करेगा मोशन? 10, 20, 30, 40, 50. सर नहीं समझा. अरे भाई, आना जाना एक समान. इफ इट इज गोइंग विद वेलोसिटी 50, इट इज कमिंग डाउन आल्सो विद वेलोसिटी 50. दिस इज अपवर्ड जर्नी, दिस इज डाउनवर्ड जर्नी. लेट अस से, मुझे बताएंगे बेटा उसको ये 30 सेकंड पहुंचने को कितना टाइम लगा जाते वक्त? 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड, 2 सेकंड लगा ना बेटा, बराबर है. अच्छा, 30 सेकंड, 30 जो है ना, ये हाइट ना बेटा, ये हाइट जो है ना उसने 2 बार कवर किया. एक 2 सेकंड में कवर किया, एक रिटर्न जर्नी में. रिटर्न जर्नी में काउंट करते कितना टाइम लगा? रिटर्न जर्नी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 सेकेंड बाद वो फिर से 30 पे आएगा. मैं बहुत जो बोल रहा हूँ फिर से ध्यान दो. वो जो ये 30 का जो ये बार है ना, ये जो लाइन है ना 30 वाला, ये वाला लाइन बेटा वो 2 बार टच करेगा, एक जाते वक्त भी और एक आते वक्त. जाते वक्त उसको सिर्फ 2 सेकंड लगा, आते वक्त उसको कितना लगा, टोटल 8 सेकंड लगा. तो टोटल को ऐड करो बेटा, 2 और 8 को ऐड करो, कितना होता है 10. बेटा उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी 10 है. गिन लो, जाते वक्त 5, आते वक्त 7, बराबर है. तो डियर स्टूडेंट्स, T1 is the time taken to go up, T2 is the time taken to go down. तो T1 plus T2 is what? T. तो ये रहा आपका into under result. If the projectile covers the same distance h while going and covers the same distance h while coming down, and here it takes time T1 to go up and here it takes time T2 to come down, then T1 plus T2 will be what? Capital T, and capital T is what? 2u sin theta by g. So this is the result. T1 plus T2 is equal to 2u sin theta by g. Now we have to discuss few more things, horizontal projectile and inclined projectile, but we are keeping this video short and then we'll move into the next class and then put that video. Okay, we'll stop here.